Jangchok nas katkani jangpa mirik ya dana tsoklangata jagar bete yulnas sampai samangata dari gaston skala sukses pasa kudosto sata bola dan Madam de Topa and Moise di kaki dikit sekali Ladies and gentlemen, arrival of the chief guest of this occasion, Honorable Lieutenant Governor Ladakh Shri Kavinder Gupta ji. On this auspicious and joyous occasion of Palgam Dasto, a celebration that not only marks our shared history but reaffirms the deep cultural, spiritual and civilization ethos of Ladakh. It honors the contributions of great Ladakhi kings, saints, scholars and leaders who shaped the identity of Ladakh. The first Ladakh Palgam Dasto was celebrated in 2016 to mark the glorious 400 years of King Singye Namgyal of the 17th century, who played a pivotal role in establishing the unified Ladakh in the 17th century. Palgam Dasto is a living testament to our heritage, our culture, a bridge between our glorious past and vibrant and responsible future. On this deeply significant occasion, we are also blessed to celebrate the 90th birth anniversary of His Holiness, the 14th Dalai Lama, a towering spiritual leader and a global ambassador of Karuna, compassion, Seva, selfless service, and Maitri, loving kindness. On her behalf, I would like to invite on stage Director, Ladakh Ecological Development Group, Shri Ishetun Dubla, to kindly receive the award on behalf of Ms. Helena Norberg. He is right now the Acting Director of Ladakh Ecological Development Group. Changdak Ganshan Jiksala Dachas Lagi, Sangmala Jua Puli. Yare namda inok pitok po zabik chiksel mos keduali. Changdak salat zatna ngata uspong toshin moldok pa in nate itos minggu ne ngata chalas zangpo gangshan zada cinta nyat ngata spot pa pun gosat kya jodo mojo. And now the Lifetime Achievement Award 2025 is being presented to Professor Dr. Lobsang Sewang La in heartfelt recognition of Professor Dr. Lobsang Sewang, scholar and Losava of Ladakh. लेके तारू गांव में जन्मे आपने अपने प्रेरणादायक व्याख्यानों के माध्यम से असंख्य छात्रों को प्रेरित किया है। आपकी शैक्षणिक दृढ़ता और छात्रों की सफलता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। आपको अक्सर परम पावन दलाई लामा जी की शिक्षाओं के अनुवादक के रूप में कार्य करने के कारण लद्दाख के लोसावा भी कहलाते हैं आप। मैं अब ये दोनों हाथ जोड़कर आपसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 स्वीकार करने के लिए अनुरोध करना चाहूंगी। देवी और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर वेरी ओन प्रोफेसर डॉक्टर लोब्सांग सेवांग ला। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों।
तरह परम पावन दलाई लामा जी की सीख को हम तक हमारी ही सरल भाषा में समझाने के लिए जो ये कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं और जीवन को संवारने के लिए जो बात बताते हैं, आप हम सभी गुरु जी के कृतज्ञ हैं, लद्दाखवासी। Ladies and gentlemen, the traditional Sazal, Khataks, the beautiful memento, and the Tanka also. Congratulations to Professor Dr. Lebzan Sevangla. And now, ladies and gentlemen, Ladakh's Palgam Award 2025 being presented to Venerable Mahatela Bhikkhu Sangha Sena ji. Bhikkhu Sangha Senha, जिन्हें अद्वितीय भिक्षु के रूप में भी जाने जाते हैं। आपका जन्म लद्दाख के तिनमुसगांग गांव के सुंदर गांव में हुआ था। भारतीय सेना में सेवा देने के बाद 1977 में आपने परम पूज्य डॉक्टर आचार्य बुद्धा रखिता के शिष्य बनकर संन्यास ले लिया। 1986 में आपने महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र की स्थापना की। यहाँ आपने वंचित बच्चों को शिक्षा और आश्रय, स्वास्थ्य सेवाएं, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम और निराश्रितों के लिए देखभाल गृह जैसे निस्वार्थ सेवाएं प्रदान की। 2006 में आपने दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पहला स्कूल और छात्रावास भी स्थापित किया। आपके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए फरवरी 2017 में डॉक्टर करण सिंह ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए आपके नाम को सिफारिश किया है। योग के क्षेत्र में आपकी सेवा के लिए भारत सरकार ने 2021 में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज आप शांति और मानवीय सेवा के लिए आपके अथक प्रयासों हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित बौद्ध नेता है, जिन्हें 60 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गए हैं आप। और आज समूचा लद्दाख आपके करुणामय योगदान की हृदयपूर्वक नमन करते हुए कृतज्ञ मानता है और लद्दाख स्पंदन अवार्ड 2025 के लिए आप अनेकों शुभकामनाएं प्रदान करती है और आपकी दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन की हम प्रार्थना करते हैं। Ladies and gentlemen, with profound gratitude, Ladakh presents Ladakh Spandan Award 2025 to Venerable Mahatela Bhikkhu Sangha Sena ji. बात करना चाहता हूं, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में आकर के एक सम्मान दिया है और उसके साथ ही मुझे भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बनने का मौका मिला है। आज हम लद्दाख का इस फेस्टिवल का 9वां संस्करण मना रहे हैं। युवाओं में इतिहास, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पूर्ण तरीके से जीवित रहे, उसके लिए ये जो एक फेस्टिवल के माध्यम से प्रयास है, उसकी मैं सराहना करता हूं। लद्दाख के आज का दिन जो 5 अगस्त का दिन है, ये हमारी यूनिटी की घोषणा हुई थी, इसलिए भी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। लद्दाख के गर्व को सम्मान देना, संघ सेना जी को लद्दाख स्पंदन पुरस्कार देना, चांदी का ताज, नकद और प्रशस्ति पत्र, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि इस प्रकार के जो समाज के लिए, हमारी सभ्यता संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए काम करते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है। दिवंगत डॉक्टर लोब्संग त्सोंग को तीसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देना, चांदी का फलक और 51,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र देना, ये भी इनका बहुत बड़ा सम्मान है। ये जो पुरस्कार है 2023 में शुरू किया गया, लद्दाख के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको सम्मानित किया जाता है। अपनी जमीन के लिए अपनापन और गर्व की भावना को बढ़ाना, ये इसका मुख्य जो लक्ष्य है। किसी भी क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति, उसकी लाइफलाइन होती है, उसकी जान होती है। और आज जरूरत है कि हम आने वाली पीढ़ी में अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और जो हमारा
अतीत है, हमारी हिस्ट्री है, उससे लोगों को अवगत कराने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें। मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ, आज यहाँ पर हम संकल्प लें कि आने वाले समय में, क्योंकि हमारी एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसी भाषा है, अलग अलग जो हम राज्यों में जाते हैं तो अलग अलग तरह का जो वेशभूषा है, उसकी भाषा और कल्चर एक्सचेंज के मामले में हम ये भी प्रयास करें कि लद्दाख की तरफ से हमारे जो बच्चे हैं उनको दूसरे प्रदेशों में जाने का मौका देंगे, ताकि वो वहाँ के कल्चर एक्सचेंज के माध्यम से पूरे भारत को जाने। और जो हमारा होम स्टे का जो एक यहाँ पर तरीका बनाया गया है, अभी मैं 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी से मिला था, तो प्रधानमंत्री जी ने इस पर विशेष जोर देने की बात कही है, ताकि देश भर से लोग यहाँ पर आएं और यहाँ पर हमारे बारे में, हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे इतिहास के बारे में जानें। मैं ये सभी से कहता हूँ कि आज एक संकल्प लेकर के जाएं कि हमें अपनी भाषा, अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, उसको आगे बढ़ाने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। अलग भाषा है, अलग भेष है, फिर भी अपना एक देश है, अनेकता में जो एकता का जो मंत्र है उसको हम अपना करके चलेंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।